Saab, President of QOMI. Please have a seat, sir. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद. The pursuit of excellence with unrestrained passion can lead to the accomplishment of wonders with unsurpassed joy. The learner always begins with finding fault, but the scholar sees positive merit in the everything. With this quote of George William Frederick, I would like to extend my respectful greeting to go all the galaxies of intellectuals, Honorable President of QOMI and ex-President of QOMI, Mr. Khalilur Rahman Sahab and Farooq Sahab, and all the dignitaries who are present here on the stage. At the outset of my speech, I heartily roll out red carpet for you on this auspicious day of astounding success. I feel highly privileged and honored to be surrounded by eminent, significant edifice and immensely overwhelmed to express my insights on this golden day. Today marks the culmination of insistent endeavors, endless sacrifices and plethora of untiring struggles of dedicated students to accomplish their desired goals. Indeed, a great privilege to acknowledge their efforts and offer admiration for their remarkable results. And one cannot deny the fact that the relentless pursuit of excellence established by QOMI. In this pragmatic decision, QOMI emerged in 2014 and primarily emphasized to empower benefits of education to all the minority sections across regional areas. With this period, significant achievements were already made, such as encouraging extensive use of Urdu language and to promote Urdu. And Urdu teachers from far and wide are praised and awarded. The most marvelous achievement was gained after the formation of Telangana to facilitate the excessive usage of Telugu language. Passing of marks of language has reduced from 35 to 20. Not only this, our QOMI team worked as a true warrior during lockdown struggle. They tirelessly worked to ensure that oxygen supplies and basic food are supplied to the needy and victims. Needless to say, this has attracted a greater participation from distinct regions. About 45 schools, which include government and private schools, actively engaged, contributing a stupendous success. Our member this year got almost 100% result with 10 on 10 GPA. In order to increase spirit energy, we are conducting this meritorious award with around 200 awardees and 45 schools under one flag. I personally thank our chief guest and our other chief guests. In spite of their busy schedule, they gave their precious time to our students. Thank you one and all for being here and encourage the tender minds. The toppers of the different school, students, those who are excel in the school topper, mathematics topper, science topper, social topper. फिर बोलने के बाद स्टूडेंट बात कर रहे हैं भाई गर्ल्स. आई रिक्वेस्ट द गर्ल्स एंड द बॉयज वॉलंटियर्स को जरा देखिए. बच्चे हेलो प्लीज शो योर डिसिप्लिन. गर्ल्स please, not your last award, this is the first beginning of your award. Don't think that ये हो गया, मुझे अवार्ड मिल गया, मैं बहुत चले जाऊंगा आगे. No, this is your beginning. यहाँ से आपको और डिसिप्लिन करना है और मेहनत करना है, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रूफ करना है कि हम क्या करते हैं, कैसा लेके जाते. एक जोरदार तालियां जनाब पाशा खानदानी साहब आए हैं. Today's VIP. All of you stand on your place. All of you stand.
Don't shout again. I am requesting you. Only clap. Sir, आ जाइए ऊपर आ जाइए. बैठ जाइए अपनी जगह पे बैठ जाइए. Sit down. Now what I am going to be tell you, if you want to be success in the life, you must work hard. ये आपका पहली कामयाबी है, ये आपका पहला अवार्ड है. ये अवार्ड को लीजिए. बच्चे जो इधर बच्चे हैं सब, ये बच्चों को जो थोड़ा सा खामोश बैठाइए. आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. एक डिसिप्लिन चाहिए अपनी लाइफ में, और आगे बढ़ने के लिए एक टाइम टेबल चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में. आपको एक फर्स्ट व्हाट द बशीर साहब सेड कि भाई आपको यू मस्ट पुट द टारगेट. टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है. आपको क्या बनना है पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए. स्टडी एसएससी जो है आपका एक क्रॉस रूट ऑफ योर लाइफ रहता है. यहाँ से आप जहाँ जाना है, डिसाइड योर सेल्फ इन द मैथ्स फील्ड, इन द साइंस फील्ड, इन द आर्ट्स फील्ड, इन द कॉमर्स फील्ड. जहाँ पे भी जाना चाहते हैं यहाँ से जा सकते हैं. अपने बड़ों से, अपने स्टाफ से एक मशवरा करिए आपको क्या बनना है. देन यू कैन अचीव इट, देन यू कैन गेट इट एंड टेक इट. एंड बगैर मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिलती, ये चीज़ समझ जाइए. और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है तालीम ही. आज के ज़माने में अगर आप तालीम हासिल करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं. आगे जाके हर चीज़ में कर सकते हैं. बग़ैर तालीम के कुछ नहीं होता है. बग़ैर अगर आप तालीम के सोचते हैं कि हमको ये मिल जाना, बैठे जगह वो मिल जाना, सोचना भूल जाइए. आपको मेहनत करिए, आपका टाइम दीजिए. माशाल्लाह से आपके टीचर्स हैं, आपके स्कूल में हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अपने जो भी बच्चे हैं उनसे मशवरा करिए किस फील्ड में आपको जाना है, किस में आपको इंटरेस्ट है. जस्ट गो अहेड. थैंक यू वेरी मच. Really, he is a very kind-hearted person, all-time favorable personality. Janab Ahmed Pasha Khadri Saab, President of AMIM and MLA of the Yaqutpura constituency. Right, he is one of the dynamic leader of Hyderabad who had dedicated his whole life to serve the people of Hyderabad. Especially, they uplift the innocent people of the old city. Welcome, sir. Khush Ahmadid. Now, I call Mr. Janab Khalid Hashmi Sahab to say few words because हर एक माँ बाप चाहता है कि बच्चा IAS IPS ऑफिसर बने. तो उसी बीच में यहाँ पे एक ऐसे पेरेंट हैं जो उनका लड़का IPS ऑफिसर बना है. ये हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ पे इनके साथ मौजूद हैं. और हम ये चाहते हैं कि हर वो बच्चा IPS और IAS बने. खालिद हाशमी साहब. अस्सलाम वालेकुम. ऑलरेडी बशीर साहब तफसील से आपको बयान कर चुके हैं क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पढ़ना है, क्या करना है. मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा आपके. आप पहले अपना गोल सेट कर लिए. कई बच्चों का गोल होता है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, अकाउंटेंट बनना, चार्टर्ड अकाउंट्स बनना, लेकिन कोई सोचता नहीं है कि IAS IPS बनना. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फोकस योर स्टडीज़. आप अपने जो है ना पढ़ाई का ध्यान पूरा 8th क्लास से जो है ना IAS IPS के लिए सर्च कर दें. उसको किस तरह पढ़ना चाहिए उसके लिए काउंसलिंग होती है एवरी ऑल्टरनेट संडे. एंड दिस संडे जो है ना जितने IAS IPS कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं ये साल, वो लोग जो है ना अपने 2-3 मिनट का बयान दे रहे हो कैसा पढ़े. उसमें आप लोग सब अटेंड कीजिए, अटेंड करके समझिए. उसके बाद फिर संडे आने वाला 10 AM to 1 PM आरिस अहमद साहब जो IAS ऑफिसर हैं, आसाम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ही इज़ ऑर्गेनाइजिंग दैट. ही विल एक्सप्लेन, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ IAS, व्हाट इज़ IPS, व्हाट इज़ IFS एंड ऑल अदर पोजीशंस. एंड उसके बाद जो है ना उनको कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं. ये पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटर्स सब अटेंड कीजिए. और इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वेब लिंक के ज़रिए. जो वेब लिंक जो है ना हमारे फारूक साहब आपको फॉरवर्ड करेंगे. फारूक साहब के पास वेब लिंक से ही विल फॉरवर्ड इट टू यू पीपल. ओके, एज पर योर रिक्वेस्ट. इसके बाद में स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को एक छोटा मशवरा देना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स ख़ास तौर से स्टूडेंट्स का टाइम कंट्रोल कर सकते हैं. ये पेरेंट्स ही हैं जो स्टूडेंट्स का टाइम कंट्रोल कर सकते हैं. अगर पेरेंट्स नहीं बोले तो बच्चे पूरे टाइम बर्बाद कर देते हैं. वो किस तरह, पेरेंट्स के जितने भी जो है ना रिश्तेदारों के शादियाँ होते हैं, कई शादियाँ होते हैं, महीने में
10-15 शादियाँ होती हैं, उसके अंदर कितना टाइम बर्बाद होता है, पूरा दिन 2 दिन चले जाते हैं उसमें बच्चों के। एक दिन प्रिपरेशन में, शादी की प्रिपरेशन में, दूसरे दिन जो है ना आराम में, बहुत काम हो गया आराम करने में, जिसकी तरफ से बच्चों की पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। ये शादियों में बहुत टाइम ख़राब हो रहा है, इसमें पूरे अवॉइड कीजिए। पूरे बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि इसमें अवॉइड कीजिए आप लोग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन दैट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप मेहनत इस तरह कीजिए, स्मार्ट मेहनत कीजिए। स्मार्ट मेहनत इन द सेंस स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना है, स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से यूज़ करना उसको, ओके, टाइम बर्बाद नहीं करना। सोशल मीडिया से दूर रहना है, सोशल मीडिया से फॉलो करो लेकिन अपनी खाली नॉलेज के लिए फॉलो करो, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। तीसरी चीज़, अपने फ़राइज़ के अंजाम पूरे कीजिए, वक्त पे पूरे कीजिए फ़राइज़ के अंजाम। कई लोग ऐसे हैं जो नमाज की पाबंदी नहीं करते। नमाज की पाबंदी भी आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तो अपना फ़र्ज़ है, ये हर हाल में अदा करना है। बस इतनी सी बात करना था मुझे। और ये संडे जो है ना, जो वेबिनार होने वाला है, सब लोग अटेंड कीजिए उसमें, और इसकी लिंक माशाल्लाह, अगर IAS IPS बनना है तो पहले दावता छोड़ना पड़ता, राइट। पूरे घर के फंक्शंस सब पूरे अवॉइड करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि सारे के सारे थक चुके हैं। जवाब ज़ोरदार आना चाहिए ताकि ये महसूस हो सके कि आपकी मौजूदगी यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े ही कशमकश के 2 साल के हालात के बाद, पेंडेमिक के दौर से गुज़रते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। हर साल की तरह इस साल कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से ये SSC मेरिटोरियस अवार्ड 2022 मुनक़िद किया गया है। और जहाँ तक के 2 साल के हालात थे, उस हालात में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले स्कूल्स थे और बच्चों की तालीम थी। अल्लाह का फजल करम है कि हालात साजगार हो चुके हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाया है, तो इस रिज़ल्ट लाने पर ख़ास तौर पर मैं दिल की गहराइयों से तमाम तलबा व तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का इनेकाद आज से 2013 और 14 एकेडमिक के दरमियान में इसका इनेकाद अमल में आया था। कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का इनेकाद अमल में लाने का मकसद ये था कि बच्चों में तालीमी शऊर बेदार करना और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को मोटिवेट करना और उनकी तालीम में बेहतरी लाना, और साथ ही साथ टीचर्स को हालात के मुताबिक मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स देते हुए उनको आने वाले दौर के लिए तैयार करना। तो माशाअल्लाह कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ने आज इतने सालों से ये काम करती हुई आई है, और इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों की दुआएं रही तो इसी तरह ये काम जारी रहेगा। आज हमारे बीच आली जनाब अहमद पाशा कादी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से, कौमी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। और मेरे दीगर साथी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र आली जनाब खलीलुर रहमान साहब, MS फ़ारूक साहब और अलीम साहब, इदरीस अहमद शरीफ साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी शकील साहब और दीगर स्कूल लीडर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम का मैं आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी हिम्मत अफजाई करते हुए इसी तरह बच्चों की तालीमी सरगर्मियों को लेकर उनकी तालीम की तरक्की के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी निशिस्त लेता हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता,
हौसलों से उड़ान होती है। खुदा हाफ़िज़। जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, टू से फ्यू वर्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन हुसैन हमारे खलीलुर्रहमान साहब, फ़ारूक साहब, तमाम डेस्क पे तशरीफ़ फरमा मौजूद हज़रात, दुख्तरान उम्मत, फ़र्जंदान इस्लाम, सबसे पहले तालीमी मैदान में आपकी कामयाबी पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये मदारिस जो लोग तालीमी मैदान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं हमेशा तलबा तालिबात को मुबारकबाद देने से पहले उनके वालिदैन को, उनके सरपरस्तों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने एक अहम फ़ैसले के ज़रिए अपनी औलाद को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का जो फ़ैसला किया है वो लायक सिताइश काबिल मुबारकबाद है। आज के इस दौर में नए नए हालात का हमको सामना करना पड़ता है। हमारी मईशत, हमारी माशी हालत इतनी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी खून व पसीने की कमाई से औलाद को तालीम दिलाना ये वालिदैन का हक़ है और वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, जिसके ऊपर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ़र्जंदान इस्लाम के लिए मैं अर्ज़ करूँगा, बरादरान इस्लाम के लिए, इनक़िलाबात की फ़ितरत तुम्हें मालूम नहीं, इनक़िलाबात की फ़ितरत तुम्हें मालूम नहीं, अज़्म के सामने तक़दीरें बदल जाती हैं। अगर जुस्तजू, मेहनत और जुस्तजू के साथ तालीम हासिल करे, एक सुई रही तो यकीनन कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। अज़्म में मुसम्मम होना चाहिए। हुसैन नौजवानों की आदत है, जब क्रिकेट का मैच टीवी पे आता है तो हर गली कूचे में क्रिकेट का बैट बॉल नज़र आता है। जब कोई क्रिकेट के अलावा दूसरा गेम आता है तो वो थोड़े दिन एक गेम में, थोड़े दिन एक गेम में। तो हैदराबाद के पुराने बूढ़ी औरतों की कहावत है, किसी में भी नहीं पूरे सब में अधूरे, किसी में भी नहीं पूरे सब में अधूरे। इसलिए कहा जाता है कि एक चीज़ को अपना ले, चाहे गेम्स में हो, तालीम में हो, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो। अब आप तालीमी मैदान में कोई एक सब्जेक्ट को मुंतखब कर लेते हैं अपने लिए और आप ये तय करते हैं कि मैं लॉयर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, और कोई IPS ऑफिसर, कोई IAS ऑफिसर की ख्वाहिश रखता है। बस उसमें जुस्तजू करते जाइए, मेहनत करिए, नामसाई हालात रहेंगे, मुश्किलात का सामना रहेगा। जब आप साबित कदम रहेंगे तो ऊपर वाले को भी आप पे तरस आएगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम ही जो ठहरे तो करम का क्या ठिकाना। मेहनत कीजिए, बस दुनिया के ज़ाहिरी चीज़ों पर कम उम्मीद रखिए कि वो आपकी मदद करेंगी। आपका मददगार अगर कोई है तो आपका परवरदिगार है। बस उसी पे भरोसा रख के आगे बढ़िए, काम करते जाइए, तालीम हासिल कीजिए। मैं हमारी दुख्तरान उम्मत के लिए कहूँगा कि आप लोगों की कामयाबी भी हमारे लिए, मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। और आप लोगों की कामयाबी पे जो बुलंदी होती है वो यकीनन माँ बाप के वास्ते और स्कूलों के वास्ते बायस फ़ख्र होती है। इसीलिए किसी ने कहा, बड़ी घर की शान है बेटी से, बड़ी है घर की शान बेटी से, महकता रहता है सारा जहान बेटी से। बड़ी है घर की शान बेटी से, महकता रहता है सारा जहान बेटी से। ज़रूरी नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। इसलिए फी ज़माना बच्चियों की तालीम बड़ी अहमियत का हामिल होती है और उनके लिए ज़रूरी है कि वो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बच्चियों और बच्चों के लिए आखिरी में ये मैसेज दूंगा मैं कि आपके घर में अगर कोई नेमत है,
कोई दौलत है, कोई इनाम अल्लाह का है तो आपके माँ बाप हैं। उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम देखते देखते तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचेंगे। लोग नाकदरे हैं जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। तुम्हारे पास सबसे बड़ा सरमाया है, जिसके माँ बाप जिंदा है वो इस दौर का लखपति अरबपति से ज़्यादा खुशकिस्मत है। जो माँ बाप से महरूम है, जो माँ बाप से महरूम है, उसको बताइए, उसको मालूम है कि माँ बाप की जुदाई क्या होती है। क्योंकि माँ बाप जो औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करते हैं और अब औलाद के लिए जो खिदमत अंजाम देते हैं, उसका हक़ औलाद कभी भी पूरा नहीं कर सकती। 4 डिग्रियां आने के बाद, थोड़ी दौलत आने के बाद, नाउज़ुबिल्लाह माँ बाप को नीची निगाह से मत देखो, तुम्हारे पूरे आमाल गारत हो जाएंगे। उनकी कदर करो, उनकी दुआएं लो। हमारे सामने बेशुमार वाक़यात है, हालात है। जो लोग माँ बाप की दुआ से तरक्की करें, अल्लाह उस तरक्की को कभी ज़वाल नहीं बताता, हमेशा तरक्की पे तरक्की की जाती है। इसलिए लड़के हों दो कि लड़कियाँ, तालीम हासिल करो, माँ बाप की दुआएं लो, तुम कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचो। मैं फिर आखिरी में तमाम स्कूल मदारस के इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों की खिदमत जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये दौर में जो लोग तालीमी मैदान में काम करते हैं, उनको जो हालात का मुकाबला करना पड़ता है वही जानते हैं और खुदा जानता है। लेकिन जो साबित कदम होते हैं, जिसके पास अज़्म होता है, वही कामयाब होता है और अपने मदरसे का नाम रोशन करता है। आप लोग कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँचिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, माँ बाप की ताज़ीम कीजिए, उनकी दुआओं से आप कामयाबी हासिल कीजिए। अल्लाह माँ बाप की दुआ में इतनी ताकत रखा है। दुनिया वालों की दुआ तो दुआ होती है, लेकिन सबसे ताकतवर और तासीर वाली अगर किसी की दुआ है तो वो माँ बाप की दुआ होती है। माँ बाप की दुआ के ज़रिए आपने अपने मुस्तकबिल को संवारो और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँच जाइए। शुक्रिया। और हमारे पास सबसे बड़ा उसवा जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपना लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में जो है हमेशा कामयाबी और कामरानी होगी। और हमारी बेटियों को हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी को जो है अपना आइडियल बनाना चाहिए। और अगर उसको आइडियल बना के अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी कामयाब रहेंगी और उखरवी ज़िंदगी भी कामयाब रहेंगी। शुक्रिया, थैंक यू। मैं ज्ञान और कॉमिक्स फेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। Still we are waiting the warm personalities. They are on the way, right? So unless let's the function will be continue. So here now the better to distribute the school toppers as well as the maths toppers, Telugu topper as science toppers. No? Yes beta. मैं सुना था कि है अभी तो नापी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज अकबर फंक्शन हॉल में जो यहाँ के जो अतराफ़ के जितने भी फुल सिटी के स्टूडेंट्स हैं एसएससी के, माशाल्लाह बड़ी उम्दा और कामयाबी हासिल करे हैं। माशाल्लाह चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, माशाल्लाह अब यहाँ से
एसएससी के बाद जो आप लोगों का सफ़र है, असल सफ़र यहाँ से चालू होता। अब यहाँ से कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई वकील बनता या कोई आईपीएस आईएएस बनता, तो आप अब तक के जो लगन थी आप लोगों की, यहाँ तक जो मेरिट में पास हुए आप लोग, उसी तरह ये सिलसिला आप लोग चालू रखिए, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ। आप मेहनत कीजिए रात दिन, इंशाल्लाह ताला मुस्तक़बिल आपके हाथ में होगा। और मैं तो बोलता हूँ पेरेंट्स से, जितने भी मतलब लड़कियों के वालिदैन हैं, उनसे एक गुजारिश है कि जब तक उन लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं होती, उन लोगों के शादी वगैरह का मत सोचिए आप, और अपने अपने बच्चों को, चाहे बच्चे हो या बच्चियाँ हों, उनको अपने पैर पे ठहराइए, अब्रॉड भेजाइए, क्योंकि फ्यूचर जो है पढ़ने से ही है। आप जो इतना अच्छा रिजल्ट जो निकला एसएससी, बाज़ लोग इंटर होते ही शादियां कर देते, वैसा मत कीजिए। आप अपने बच्चियों को और बच्चों को जो अपने पूरी डिग्रियां हासिल कराइए और आला तालीम हासिल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।